Hey guys, welcome back. A very good evening to you all. And this lockdown period is not getting over for me. It's on my head now. And I was really thinking today. I got a call from one of my patients, and he was asking me regarding, sir, I want to get treatment. Shall I do it? Like he called me from a containment zone here in Bhubaneswar. So like I was horrified from inside. I told him come after 15 days directly. Without giving any thought. So dental practice, how it will be after 15-20 days after 3rd May, it's really questionable, and it's really doubtful, and many people will suffer for this. Particularly this dental profession is at stake now. Because see, if you're staying alone or if you're a medical professional, you can go to the clinic, you can write prescription. दूर दूर से आप सब कुछ कर सकते हो without touching the patient. By listening to the symptoms of the patient, you can write the medicine. But in dentistry, that's a different thing. You have to go inside the mouth of the patient to do treatment, right? High chances of getting infection from COVID-19, and more than you, the most dangerous part is you're coming back home and you have relatives, you have mother, father, your child. They all are at stake. So basically, this video is for you. Actually, you have to comment and answer me what to do. So regarding PPE kit, first question: who will give the PPE kit? From where will procure it? Which can we get it in a medicine store or in a retail shop or in a wholesale medicine dealer or a surgical shop? Who will give the PPE kit? First question. The cost of the PPE kit. Third, okay, you will start working in the clinic by using a PPE kit. Okay, now I will tell you what is a PPE kit. It covers your entire body, your face, everything is covered. You are using an N95 mask, everything is proper. Patient आया, आपने काम किया patient पे, you worked on the patient. Now you're working on the patient, right? And you have an attender with you. 2 people are there, and one more कोई और doctor is there with you, right? All 3 have to wear PPE kit. The cost of one procedure will be around 1000 rupees. I don't know what is the cost of PPE kit. जितना भी अगर 500 रुपए तो PPE kit का भी होगा, high rate होगा. तो 500 into 3, 1500 rupees for doing one procedure. Even if it's a filling, 500 rupees filling भी करने के लिए आपको 1500 को PPE kit use करना है. आप पहनेंगे, आपका attender पहनेगा, and the third person who is there in your clinic, whether he's there or not, intern or any doctor or your junior doctor, they have to wear a PPE kit, right? So after doing the procedure, first of all, you're doing is you keep everything. You wear your gloves, then you sit somewhere, or even if you don't sit somewhere, you have to write the prescription. So this thing you have to give rest to the table and write. तो वो वाला टेबल टच हो गया, फिर उसको साफ करो, फिर आप प्रेस्क्रिप्शन में लिखोगे, वो पेन से आप पकड़ोगे, पेन को कहाँ रखोगे, फिर उसको स्टेरिलाइज करो, टेबल को साफ करो, और आपकी असिस्टेंट जिसके ऊपर अभी काम हो चुका है, अभी सारा काम खत्म हो गया, वो ऑलरेडी पीपी किट पहन के क्लीन कर रही होगी सब कुछ, सक्शन वक्शन एवरीथिंग. और वी कैन डू वन थिंग. आप अपने जो असिस्टेंट है, डॉक्टर है, उसको बोलोगे कि तू मेडिसिन लिख. बट जो एरोसॉल है वो भी तो पेशेंट से उड़ के पूरे रूम में फैल गया होगा ना. माई क्लिनिक इज नॉट दैट वेल वेंटिलेटेड. आई हैव एसी के भरोसे मेरा क्लिनिक चलता है. अभी एसी में बंद नहीं कर सकता. अगर मैं एसी बंद करूं, मैं कमरा, माई रूम बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट एंड यू कैन नॉट वर्क इन देयर. ठीक है. अब नाउ दिस इज मे, राइट? दिस मंथ इज मे एंड इट इज ऑलरेडी वेरी हॉट. ऐसे नॉर्मल टी शर्ट में ही इतना पसीना आता है, एक घुटन होती है जब काम करते हैं. सिर्फ टी शर्ट, अगर मैं शर्ट पहन लूं तो इतनी घुटन होती है, तो पीपी किट पहनूंगा तो क्या हालत होगी मेरी. चिल्ड एसी करना होगा 16 में. मैं एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ. आप रूट कैनाल के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए. इट नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. इम्पैक्शन नीड्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन. ऑलरेडी विद 16 AC माई स्वेट कम्स आउट लाइक दिस. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट यू. 18-20 AC में चलता है तब भी आई गेट स्वेटिंग while doing normal procedures because of the heat of the light is there, plus so many things are there. You're working and sound is getting produced. Compressor is working, it's nearby me, and tension is also there. So you need so much concentration. Within that concentration, wearing and opening that PP kit will disturb your concentration. So in my last video I said ki you cannot do more than 2 patients per day, 2 evening, 2 morning, and you have to keep a separate person for cleaning. So it will be cost of doing procedure and treatment will be very high.
तो आई फील यू नीड टू इंक्रीज द रेट्स ऑफ योर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इन योर क्लिनिक. जो भी आप काम कर रहे हैं आपको 500-600 रुपीज बढ़ाना पड़ेगा. दैट इज द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज द राइट टाइम. इफ यू डोंट इंक्रीज दैट यू विल बी एट लॉस. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग गाइज. एंड पेशेंट एक्सेप्टेंस विल बी ऑल्सो देयर कि ओके you are using so much things and you have to do it, you have to implement in your clinic, otherwise it's not possible to practice. And then a thing goes कि मैं सोच रहा था कि if I do any procedure, what all surface I have touched, I have to remember and avoid touching. I should only finish the procedure and stand by doing my hand like this. I should stand and I should dictate the medicines, tell the patient everything. Now when I want to work on the second patient, I have to open my PPE kit. तो पहला पॉइंट हो गया ये कि सारा सरफेस को हम लोग जहां लिखेंगे उसका कैसे करना है आप बताइए मुझे. दूसरी चीज है जब हम मेडिसिन लिखेंगे. तीसरी चीज है जब हम सेकंड पेशेंट स्टार्ट करेंगे. सो अगेन सब कुछ खोल के कहाँ डिस्पोज करेंगे, रखेंगे कहाँ पे. और जब खोलेंगे ऐसे वो तो इधर हाथ में टी शर्ट में लग जाएगा. ठीक है. और मेरे क्लिनिक में तो चेंजिंग रूम नहीं है. जो मेरी लेडी असिस्टेंट है वो कहाँ चेंज करेगी. तो हालत थोड़ी गंभीर है. तो एक वॉशिंग मशीन भी खरीदना पड़ सकता है आपको, क्योंकि पीपी किट को आप जैसे ही आपने निकाला डायरेक्टली आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया. आई डोंट नो वेदर वी कैन रीयूज इट और नॉट. आई थिंक यू हैव टू डिस्पोज द पीपी किट, राइट. बट सपोज यू हैव डन इन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट एंड आपको पता कैसे चलेगा पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है. तो रैदर देन डूइंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स, इफ यू टेल द पेशेंट टू डू अ COVID-19 टेस्ट तो and get the report to you and get the treatment done. ऐसा इंडियन लोगों में आपको लगता है कोई अपना COVID-19 टेस्ट खुद से कराने जाएगा. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में तो बहुत सारे लेटर्स, आईडीए के लेटर्स ये सब आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा है डिफरेंट थिंग्स. पर आपको लग रहा है ये फॉलो होगा? मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिए. मतलब ये मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं ये खुद सोच रहा था कि क्या करेंगे हम लोग. देन जो आप पीछे पेशेंट को बोलोगे आप सर COVID-19 टेस्ट करा के आइए, आफ्टर दैट आई विल डू द ट्रीटमेंट. कैसा लग रहा है आपको? कैसे होगा? कैसी होगी चीजें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी. पेशेंट को बोलोगे आप COVID-19 को, पेशेंट मे गेट ऑफेंडेड, उसमें से 1% भी कोई करा के नहीं लाएगा. इट्स माई चैलेंज. क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है कि बिना सिम्टम के चला जाए और COVID-19 टेस्ट करा के आए. वो तो आप भूल ही जाए. ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और फेसबुक में पता नहीं क्या क्या सब आ रहा है कि पेशेंट को बोल के करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है. वो ऑप्शन हटा दो. तो ओनली पीपी किट आपका सेवियर है. अब पीपी किट का जो मैंने सवाल किए वो कैसे हैंडल करना है, पीपी किट को कहाँ फेंकना है. तो पीपी किट तो इतना बड़ा होता है, आपका डस्टबिन इतना छोटा, कैसे उसके अंदर घुसेगा? आप कहाँ डिस्पोज करोगे? एक पेशेंट करने के बाद एक काम करना, असिस्टेंट डॉक्टर और जो डॉक्टर है ना सब लोग क्लिनिक के बाहर जाना, तो उसको जला देना. लेकिन वेस्ट डिस्पोजल वाले फिर आ जाएंगे, बीएमसी वाले, कि सर यहाँ की पोल्यूशन कर रहे हो, जला रहे हो. तो कहाँ डिस्पोज करें यार उसको? गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस भी पीपी किट को जो यूज कर रही है, इतने सारे हॉस्पिटल में यूज हो रहा है पीपी किट, उसको कैसे डिस्पोज कर रहा है वो एक वीडियो आना चाहिए दूरदर्शन पे या फिर डीडी न्यूज पे. वो भी एक वीडियो बननी चाहिए, हाउ टू डिस्ट्रॉय द पीपी किट. एंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तो छोड़ ही दो. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मन में आ रहे हैं. तो मैं इंस्टाग्राम में इसको लेके लाइव भी आऊँगा. आई थिंक आई विल कम लाइव डे आफ्टर टुमारो. परसों हम लोग लाइव मिलते हैं और बातें करते हैं इस चीज़ के बारे में कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए. एंड मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग द डेंटिस्ट टू गो टू द क्लिनिक्स. ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, हो गई है. तो मम्मी पापा सब तो आपका मतलब प्यार करते हैं ना, इसलिए वो सोचते हैं कि यार कहीं हो ना जाए कुछ, भले ही पैसे ना आए. लेकिन हमारा ब्लड कैसे चलता है, हमारा जिंदगी काम करने से होगी. हम लोग डेली मजदूर हैं, डेंटिस्ट लोग. डेली कमाएंगे, डेली आएगा पैसा, डेली खर्च होगा. तो अगर नहीं जाएंगे क्लिनिक, घर पे बैठे रहेंगे तो यार भूल जाएंगे सब कुछ. ऐसा मुझे फील हो रहा है. और आई फील कि आप लोगों भी इसके बारे में कमेंट करिए, आप क्या फील करते हैं. मैं जो फील कर रहा हूँ आप भी यही फील कर रहे हैं. आपको क्या लग रहा है, कैसे करनी चाहिए प्रैक्टिस? और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछिए. अभी तो डाउट आने वाले हैं आगे में. और कोई अगर पीपी किट खरीदने का लिंक वगैरह है ऑनलाइन वगैरह, तो प्लीज़ मुझे इस मैसेज में लिखिए ताकि मैं वहाँ पे जाके देख सकूँ कितना कॉस्ट है, पीपी कितनी कॉस्ट है, कितने टाइप के पीपी किट होते हैं. एक ही टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का. DRDO वाले ने एक पीपी किट निकाला है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ पीपी किट्स यूज़ कर रही है. और जो भी पीपी किट बन रहे हैं वो
ऑथेंटिक पीपीई किट है कि नहीं, रोक रहे हैं कि नहीं अपनी बॉडी से, मतलब या फिर ऐसे भी है जैसे ऐसे कुछ रेनकोट मटेरियल से सिल दिया पीपीई किट और वो लिख दिया पीपीई किट। इज इट रियली अ पीपीई किट और नॉट, वो कैसे पता लगाए? जैसे हेलमेट में होता है डॉट रेजिमेंट होता है, आईएसआई होता है, ताकि वो पता चलता है कि हाँ ये डॉट हेलमेट है, मतलब एक्सीडेंट होने से भी इंसान के सर फटने के चांस बहुत कम है। तो सिमिलरली वैसे ही पीपीई किट का कोई स्टैंडर्डाइजेशन है, कैसे पता लगेगा? ये सब चीज़ें, सवाल जो हैं, इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है आज अभी के प्रेजेंट टाइम में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए इस वीडियो में। आई वांट मोर देन 300-400 कमेंट्स फॉर दिस वीडियो, और आई वांट टू नो कि आपका क्या ख्याल रखते हैं, कैसे करना है, आप क्या सोचते हैं, उसको कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर इस वीडियो का कमेंट का सारे रिप्लाई करूँगा। टाइम बहुत है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करिए और बताइए कि क्या आप फील करते हैं इस चीज़ के बारे में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ वेरी गुड इवनिंग इन फैक्ट।